So today we are going to start another chapter of class 12, that is the fifth chapter, Principle of Inheritance and Variation. Okay, before starting the chapter, let me write down the subtopics which we will deal in this chapter. है ना? इसमें पढ़ेंगे हम लोग मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस और मेंडल्स लॉस पढ़ेंगे, 3 लॉस पढ़ेंगे. ओके, मेंडल्स लॉ के अलावा कुछ और भी चीज पढ़ेंगे जो मेंडल्स ने नहीं दिया था. ठीक है, लाइक वी विल स्टडी कोडोमिनेंस, incomplete dominance, then we'll study interaction of 2 gene, ठीक है, with respect to पोस्ट मेंडलिज्म. ठीक है, मेंडल्स लॉ खत्म हो जाने के बाद, ठीक ना, कुछ और भी इंटरेक्शंस होते हैं, दैट वी विल स्टडी. देन वी विल स्टडी क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस. Then linkage and recombination. This is another one most important topic. Recombination. Then mutation, another most important topic. Okay. After mutation, we will deal Mendelian disorder. Mendelian disorder. In Mendelian disorder, I'll discuss pedigree, है ना, sex determination, okay, sex determination we'll study somewhere here. Then cytoplasmic gene inheritance. Cytoplasmic inheritance. है ना, दिस थिंग्स वी विल डील. मोटा मोटी यही सब टॉपिक है जो इस चैप्टर में डील करेंगे हम लोग. मेंडल्स लॉ आप क्लास 10 में भी पढ़े होंगे. 3 मेंडल्स लॉस है. प्रिंसिपल तो बहुत सारा, 10-15 प्रिंसिपल्स है, लेकिन उन सभी प्रिंसिपल्स को लॉस के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया ऑफ ओनली 3. ठीक ना, 3 ही प्रिंसिपल्स को लॉ में कन्वर्ट करा गया. सो आप जानते हैं दैट इज अ लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. 3 लॉस है ना, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. सो ये सब पढ़ेंगे हम लोग. नाउ लेट मी इंट्रोड्यूस दिस चैप्टर. ठीक ना, दिस इज द वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ जेनेटिक्स. ये क्लासिकल जेनेटिक्स का पहला चैप्टर है. लेट मी से and define the term genetic means. What does the term genetic means? Genetics का मतलब होता क्या है? ठीक है, ओके. इससे पहले वाले चैप्टर में, रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में, हमने ये देखा था कि गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है पेरेंट्स में, एंड दैट गैमेट, 2 gamete combines to get forms the zygote and express that zygote into new individual, और वो इंडिविजुअल एग्जैक्ट 99% पेरेंट्स की तरह दिखता है ना. ये हम पढ़े थे उस चैप्टर में. इस चैप्टर में हम जानेंगे कि वो गैमेट में एक्चुअली है क्या, जिसके चलते प्रोजेनी एग्जैक्ट दिख रहे हैं पेरेंट्स के जैसे, है ना. दैट वी विल स्टडी इन दिस चैप्टर, है ना. तो जेनेटिक्स का डेफिनेशन हो जाएगा, इट इज inheritance
and variation, which moves from one generation to next generation, one generation to next generation. This is a definition for genetics. ठीक है, जेनेटिक्स का डेफिनेशन लिखते समय दो शब्द को ध्यान देंगे आप लोग. Inheritance and variation. Inheritance means the movement, the passage of gene from parents to offspring. Okay, that is called inheritance. Okay, genetics. Who was known as the father of genetics? Father of genetics. क्वेश्चन आता है यहाँ पे, यहाँ से. Father of genetics. ठीक है, yes, G.J. Mendel. Okay, father of modern genetics. Modern genetics. Father of modern genetics, that is Batson. है ना? So ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले I would like to define some of the terms which we will use in this chapter. Okay, terms, definitions हम बता रहे हैं जो इस चैप्टर में यूज करेंगे. You know who has discovered the nucleus? ठीक ना? Yes, that is Robert Brown. साइकोलॉजी वाले चैप्टर में बताया था. Robert Brown has discovered the nucleus. ठीक ना? So this is the nucleus. Okay, nucleus के अंदर होता क्या है? Nucleus has a thread-like structure. ठीक ना? रस्सी की तरह कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है ना? इसको हम लोग क्या कहते हैं? Chromatin. This thread-like structure is called chromatin. Okay, this chromatin folds during cell division and acquires this such shape, and this shape, ठीक ना, where the chromatin has foldings are called chromosome. इसको हम लोग क्या पुकारेंगे? Yes, this is chromosome. This is chromosome. है ना? For example, this is chromosome number 1. Exact इसी का तरह एक और क्रोमोसोम होगा, वो भी क्रोमोसोम नंबर 1 ही होना है. ठीक ना? एक क्रोमोसोम मदर साइड से है, दूसरा क्रोमोसोम फादर साइड से है. दिस इज ऑल्सो क्रोमोसोम नंबर 1. Togetherly, these two chromosomes are said to be homologous chromosome. Homologous chromosomes. Okay, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? होमोलोगस क्रोमोसोम. नाउ यहाँ पे आप ये आर्म देख पा रहे हो ना? कैन यू सी दिस आर्म? यस, these arms, okay, these arms are considered as or called as the arms of sister. इसलिए इसको हम लोग कहेंगे क्या? Sister chromatids. Sister, CHROMATIDS. ठीक है, इन दोनों को टुगेदरली हम बोलेंगे सिस्टर क्रोमेटिड्स, है ना? बट दिस, यदि हम इसको कंपेयर करेंगे और इसको कंपेयर करेंगे, है ना, देन दिस इज कॉल्ड नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स. क्या पुकारेंगे? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स. नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स बोलेंगे इसको. वेरी हो गया. चलिए आगे बढ़ते हैं. और ये जो क्रोमेटिन है, इस तरीके से रस्सी की तरह, इसको और रिफाइन करेंगे और डीप में जाएंगे और जूम करेंगे. सो यू विल बी एबल टू सी सच स्ट्रक्चर. आपको कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, वेयर यू विल फाइंड द अरेंजमेंट ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स. इस तरीके से. ओके, द अरेंजमेंट ऑफ न्यूक्लियोटाइड. एक न्यूक्लियोटाइड को आप डीएनए बोल सकते हो, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड बोलेंगे, है ना? ओके, सो द कलेक्शन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स in particular manner, in particular sequence, that is called
जीन, है ना, उसको कहेंगे हम लोग जीन। सो जीन का डेफिनेशन क्या होगा, ध्यान देंगे, जीन इज नथिंग बट द अरेंजमेंट ऑफ set of nucleotides in a particular manner. Arrangement of nucleotide, arrangement of nucleotides in particular manner which can code for functional प्रोटीन, इसी को हम लोग जीन कहेंगे। क्या है भैया ये, कुछ नहीं है, इट इज अ सीक्वेंस ऑफ सम न्यूक्लियोटाइड। ये होगा ना एटीजीसी, 4 ही न्यूक्लियोटाइड है ना, तो ये 4 न्यूक्लियोटाइड का इस्तेमाल करके कितना बड़ा सीक्वेंस बन सकता है, ठीक ना। तो एक पार्टिकुलर पैटर्न ऑफ सीक्वेंस को हम एक जीन कहेंगे, ठीक ना। और वो एक जीन एक प्रोटीन बनाएगा, एक एंजाइम बना सकता है ना, दैट इज कॉल्ड जीन। चलिए, फॉर एग्जाम्पल ये क्रोमोसोम 1, ये दूसरा क्रोमोसोम 1, है ना। यहां पे एक जीन प्रेजेंट है, फॉर एग्जाम्पल से 1 जीन इज प्रेजेंट इन दिस पोजीशन, ठीक ना। यहां पे एक जीन प्रेजेंट है, से SBE1 जीन, ठीक है, SBE1 जीन। दिस इज क्रोमोसोम नंबर 1, दिस इज ऑल्सो क्रोमोसोम नंबर 1। सो यहां पे भी सेम लोकस पे SBE जीन प्रेजेंट रहेगा, ठीक ना। होमोलोगस क्रोमोसोम समझेंगे मोटा मोटी की एक क्रोमोसोम दूसरे क्रोमोसोम का फोटोकॉपी है ना, फोटोकॉपी, यही समझेंगे होमोलोगस क्रोमोसोम। सो इस लोकस पे, लोकस कहने का मतलब पोजीशन ऑफ जीन ऑन द क्रोमोसोम, दैट इज कॉल्ड लोकस। पोजीशन ऑफ जीन ऑन द क्रोमोसोम इज कॉल्ड लोकस। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोई एक जीन है SBE1, तो सेम लोकस पे वही जीन प्रेजेंट रहेगा SBE1। नाउ दोनों जीन प्रेजेंट है इंडिविजुअल के अंदर, एक्सप्रेस कौन करेगा, ये वाला एक्सप्रेस करेगा कि ये वाला एक्सप्रेस करेगा, ठीक है। तो डिपेंड करता है भैया कि इन दोनों जीन में से विच जीन, इन दोनों जीन में से, ठीक है, विच वन जीन हैज द डोमिनेंट प्रॉपर्टी। डोमिनेंट प्रॉपर्टी किसमें है, ठीक है, डोमिनेंट प्रॉपर्टी किसमें है। सो यहां पे SBE के लिए कुछ ये सीक्वेंस होंगे, यहां पे भी SBE के लिए कुछ इस तरीके से सीक्वेंस होंगे। सी, ये भी एक पार्टिकुलर प्रोटीन को कोड करेगा, ये भी एक पार्टिकुलर प्रोटीन को कोड करेगा, ठीक ना। एट ए टाइम, एक समय में इन दोनों को हमें पुकारना होगा, तो हम क्या पुकारेंगे, दिस टू विल बी कॉल्ड एज एलील। क्या बोलेंगे इसको, एलील कहेंगे या फिर एलिलोमॉर्फ कहेंगे, एलील और एलिलोमॉर्फ कहेंगे। सो एलील इज नथिंग बट, ठीक ना, टू फॉर्म ऑफ ए जीन। सो एलील का डेफिनेशन दे रहे हैं यहाँ पे। हाँ, क्वेश्चन आता है, हु हैज गिवन द टर्म जीन, सो Johansen has given the term gene. Allele term has given by Batson, and definition for allele is it is two form of the gene, ठीक है। एक जीन का दो फॉर्म होता है जिसको हम लोग एलील कहते हैं, where one may be dominant and another may be recessive, ठीक ना, another may be recessive। जैसे कि देखते हैं यहाँ पे
फॉर एग्जाम्पल SB1 जीन था ना, फॉर एग्जाम्पल दिस इज कैपिटल S, एक जीन हो गया। अब मान के चलिए यहाँ पे जो जीन होगा दैट इज स्मॉल s, है ना। जीन तो सेम ही है ना, लेकिन इन दोनों का फॉर्म अलग अलग है। हो सकता है ये ज्यादा एक्सप्रेस कर पाए, ये कम एक्सप्रेस कर पाए, है ना। सो इसी तरीके से एलील के दो फॉर्म्स होते हैं, सॉरी जीन के दो फॉर्म्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड एलील्स। ठीक है, दैट एलील कंडीशन में बी इन दिस कंडीशन, इन दिस कंडीशन और इन दिस कंडीशन। एक इंडिविजुअल के अंदर एलील का कंडीशन इस तरीके से हो सकता है, दोनों कैपिटल हो सकता है। कैपिटल कहने का मतलब यहाँ पे हम डोमिनेंट दर्शा रहे हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, एलील से आगे बढ़ते हैं। जीनोम क्या होता है? ठीक है, एक दूसरा टर्म यूज कर रहे हैं हम, जीनोम, GENOME, जीनोम। जीनोम, जीनोम कहने का मतलब होता है द टोटल सेट ऑफ क्रोमोसोम और द टोटल सेट ऑफ जीन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस इन हैप्लॉइड कंडीशन। टोटल सेट of gene present in a cell in a haploid cell, haploid cell, not diploid, okay, ध्यान देंगे, haploid cell, this is the proper definition for genome, total set of genes present in a haploid cell, okay, ये हो गया genome। Now let me discuss several other terms। जैसे कि मैं बोलूंगा, जिक्र करूंगा फिनोटाइप का। फिनोटाइप, फिनोटाइप, फिनोटाइप कहने का मतलब होता है फिजिकल अपीयरेंस। फिनोटाइप मीन्स फिजिकल अपीयरेंस, अपीयरेंस, फिजिकल अपीयरेंस ऑफ एनी कैरेक्टर, कोई भी कैरेक्टर का फिजिकल अपीयरेंस जो आप देख पा रहे हो, विच कैन बी सीन, विच इज विजिबल। ठीक है, जो आप देख पा रहे हो, दैट इज कॉल्ड फिनोटाइप कैरेक्टर। ओके, जीनोटाइप कहने का मतलब द कॉम्बिनेशन ऑफ एलील, द कॉम्बिनेशन ऑफ allele, okay, nucleotide sequence present on chromosome or nucleus, ठीक है, दैट इज कॉल्ड जीनोटाइप। और जीनोटाइप को हम देख नहीं पाते हैं, ठीक ना, इट कांट बी सीन, इट कांट बी सीन। ठीक है, जैसे फिनोटाइप हम बोलेंगे टॉल, ड्वार्फ, आप देख पाओगे ना, टॉल मतलब लंबा, ड्वार्फ मतलब छोटा, देख पाओगे। नाउ दिस टॉलनेस इज बिकॉज ऑफ दिस जीन एंड ड्वार्फनेस इज बिकॉज ऑफ दिस जीन। तो आप कैपिटल टी सेल के अंदर देख पाओगे क्या? नहीं। कैपिटल टी स्मॉल टी देख पाओगे क्या? नहीं। स्मॉल टी देख पाओगे सेल के अंदर? नहीं, है ना। कैपिटल टी कहने का मतलब कुछ नहीं है, सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स है, जिसके लिए सो यहाँ पे क्या हुआ, ATGC कॉम्बिनेशन होगा, तो हम ATGC कितना लिखेंगे? इट एग्जिस्ट इन हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, सब तो नहीं लिख सकते, तो हम अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या ये जीन आप ये न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस देख पाओगे? नहीं। द पर्टिकुलर सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड, उसी को हम लोग जीनोटाइप कहेंगे। ओके, नेक्स्ट ये हो गया जीनोटाइप, फिनोटाइप। डाइहाइब्रिड एंड मोनोहाइब्रिड बताते हैं। मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहने का मतलब क्या है? व्हेन अ क्रॉस इज डन by considering only one character at a time, that is called monohybrid cross। क्लास 10th में कुछ पढ़े होंगे आप लोग। monohybrid cross when
cross is done with one character। ठीक है, जैसे कि कैपिटल टी हो गया, स्मॉल टी हो गया। हमने पौधे में सिर्फ और सिर्फ हाइट कंसिडर करनी है, और हाइट कंसिडर करके हमें आगे की ओर अपना ब्रीडिंग प्रोग्राम को कैरी आउट करना है ना। पौधा है, पौधे में तो सिर्फ हाइट ही नहीं होगा, फ्लावर भी होगा, बीज भी होगा, है ना, पॉड शेप भी होगा, पॉड कलर भी होगा, बीज का कलर भी होगा, बहुत सारा होगा। लेकिन हमारा कंसर्न क्या होगा? हमारा कंसर्न ये होगा कि हम सिर्फ और सिर्फ एक ही कैरेक्टर को अपने ध्यान में रखें, दैट इज कॉल्ड मोनोहाइब्रिड क्रॉस। डाइहाइब्रिड का मतलब क्या हो जाएगा? डाइहाइब्रिड मीन्स परफॉर्मिंग द क्रॉस बाय कंसिडरिंग टू कैरेक्टर एट ए टाइम, दो कैरेक्टर्स को, ठीक है, एट ए टाइम, दो कैरेक्टर को एक साथ लेके हम हाइब्रिडाइजेशन कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड डाइहाइब्रिड क्रॉस। जैसे कि मान के चलो हमने, ठीक है, आर स्टैंड्स फॉर सी, राउंड शेप ऑफ सीड, ठीक ना। हमने बीज में दो कैरेक्टर लिया, एक कैरेक्टर उसका शेप, दूसरा कैरेक्टर उसका कलर, तो हमने दो कैरेक्टर कंसिडर किया ना एट ए टाइम, दैट इज कॉल्ड डाइहाइब्रिड क्रॉस। ट्राइहाइब्रिड मतलब तीन कैरेक्टर को साथ में लेके हम अपना एक्सपेरिमेंट करेंगे, दैट इज कॉल्ड ट्राइहाइब्रिड, पॉलीहाइब्रिड, so on. Now let me say what is homozygous, heterozygous, what is dominant, what is recessive, ठीक है, ये सब डिस्कस करते हैं थोड़ा। डोमिनेंट कंडीशन वो कंडीशन है जो एक्सप्रेस कर पाता है, ठीक ना, विच इज जनरली रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर्स, ठीक है, जैसे कि हो गया डोमिनेंट कंडीशन, है ना। रिसेसिव कंडीशन, ठीक ना, इसी का कॉरस्पॉन्डिंग होगा स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे, लाइक दैट। नाउ ये तो एलील हो गया, एक एलील हुआ। कोई भी एक इंडिविजुअल में जो एलील होते हैं डिप्लॉइड के केस में 2 नंबर में प्रेजेंट रहते हैं, ओके। सो यदि मैं बोलूंगा होमोजाइगस डोमिनेंट एलील, होमोजाइगस डोमिनेंट एलील कहने का मतलब इस तरीके से लिखोगे, ठीक है, 2 कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करोगे। Now homozygous recessive allele you would represent by small letter t's. Now heterozygous allele कहने का मतलब क्या हो जाएगा? heterozygous allele कहने का मतलब हाइब्रिड कंडीशन में, like this capital T and small t, इसको हम लोग बोलेंगे क्या? हेट्रोजाइगस, ठीक है। तो ये हो गया होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, डोमिनेंट, रिसेसिव, डन। प्यूनेट स्क्वायर, ठीक है, प्यूनेट स्क्वायर एक स्क्वायर है जिसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द पॉसिबल प्रोजेनी ऑफ टू पैरेंट, ठीक ना। ओके, फॉर एग्जाम्पल कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी, है ना। तो इस स्क्वायर के अंदर हम पॉसिबल प्रोजेनी बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सो दिस स्क्वायर इज कॉल्ड प्यूनेट स्क्वायर। डेफिनेशन नहीं पूछता है, बस आप जान लें, एक हाइपोथेटिकल स्क्वायर है जिसके अंदर हम पॉसिबल प्रोजेनीज को बनाते हैं, ओके। ना F1 प्रोजेनी का मतलब, F2 प्रोजेनी का मतलब, F1 प्रोजेनी, फॉर एग्जाम्पल ये पेरेंट था, यहाँ पे एक पेरेंट ये है, यहाँ पे दूसरा पेरेंट ये, ठीक ना, ये दोनों पेरेंट हो गए। इन दोनों पेरेंट के चलते
कितने ऑफस्प्रिंग आए, इतने ऑफस्प्रिंग आए, इन सभी ऑफस्प्रिंग को बोलेंगे ऑफस्प्रिंग ऑफ फर्स्ट जनरेशन। इफ वन प्रोजेनी और इफ वन जनरेशन, फिलियल वन बोलते हैं इसको, ठीक ना। पहला प्रोजेनी, पहला जनरेशन, F2 दूसरा जनरेशन, F3 तीसरा जनरेशन, ठीक ना, दैट इज सेकेंड जनरेशन। सेकेंड जनरेशन कैसे आएगा? फॉर एग्जाम्पल ये सब प्रोजेनीस हो गया ना, अब मान के चलो हम ये वाला प्रोजेनी और ये वाला प्रोजेनी ले रहे हैं और सेल्फिंग किए, ठीक ना। तो इन दोनों के चलते क्या होगा, इन दोनों के चलते और भी तो प्रोजेनीस आएंगे ना यहाँ पे, तो इसको हम लोग बोलेंगे F2 प्रोजेनी और F2 जनरेशन, ठीक है ना। हाइब्रिड हो गया और कुछ छूट रहे हैं यहाँ पे। हाँ, प्योर लाइन क्या होता है? प्योर लाइन, ठीक है, ध्यान देंगे। प्योर लाइन कहने का मतलब होता है एक पौधा है, ओके, एक पौधा है, उसमें कुछ पार्टिकुलर कैरेक्टर्स है, फॉर एग्जांपल दिस कैपिटल टी है ना। तो क्या करेंगे, एक दूसरा पौधा लेंगे जिसका भी जीनोटाइप होगा कैपिटल टी, ओके, इन दोनों को क्रॉस करवाएंगे जिसके चलते एक दूसरा पौधा आएगा, उसका भी हाइट के लिए कौन सा एलिलिक कॉम्बिनेशन होगा, कैपिटल टी होगा, ठीक ना, ओके। इसी का तरह इसी का पौधा का इस्तेमाल करके हम सेल्फिंग करेंगे। फॉर एग्जांपल ये बीज निकला है ना, बहुत सारा बीज होगा तो हम 2 बीज लेंगे जिसके अंदर कैपिटल टी वाला कंडीशन होगा, है ना, तो उसका फिर से हम हाइब्रिडाइजेशन करवाएंगे। ऐसे करते हम जाएंगे 7th जनरेशन तक। 7th जनरेशन तक हम लोग सेल्फिंग करेंगे, ठीक है, इन ऑर्डर टू गेट अ प्योर लाइन। प्योर लाइन कहने का मतलब है कि स्टेबल एलील्स का प्रेजेंस होना, स्टेबल एलील का एग्जिस्टेंस होना। स्टेबल एलील कभी सेग्रीगेट नहीं करेंगे, हटेंगे नहीं, पेरेंट में ही बने हुए रहेंगे, है ना। ये किया जाता है रिसर्च पर्पस के लिए। तो प्योर लाइन का डेफिनेशन लिख लेंगे, इट इज सच हाइब्रिड प्लांट विच हैज जनरेटेड बाय सेल्फिंग, ठीक ना, सेल्फिंग अप टू 6th और 7th जनरेशन, ठीक ना। प्योर लाइन एलील्स डू नॉट सेग्रीगेट इजीली, ये हो गया डेफिनेशन उसका, ओके। और कुछ छूट रहा है, एनीथिंग? नो, ठीक ना। ये हो गया आपका टर्म्स। और चलिए इसके बाद हम लोग आते हैं मेन जेनेटिक्स पे। सो जेनेटिक्स का काम पॉपुलरली जाना जाता है कि मेंडल ने स्टार्ट करा था, ठीक है, इसलिए मेंडल को कहा जाता है फादर ऑफ जेनेटिक्स। लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक ना, इट इज नॉट लाइक दैट, ठीक है। मेंडल के काम करने से पहले भी बहुत आदमी लोग, साइंटिस्ट नहीं बोलेंगे, बहुत आदमी लोग इस पे काम कर रहे थे, ठीक है, नाइट्स थे, है ना, जो काम कर रहे थे उनका रिजल्ट नहीं आया, इसलिए दे आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड। मेंडल्स का काम भी रिकॉग्नाइज कहाँ हुआ था, है ना, उनके मरने के कई साल बाद रिकॉग्निशन मिला उनके काम को। जब माइक्रोस्कोप बन गया, लोग मियोसिस माइटोसिस स्टडी करने लगे, तब जाके मिला। सो हम अगले सेक्शन में स्टार्ट करेंगे मेंडल्स का काम। चलिए मेंडल्स पढ़ते हैं लोग। मेंडल, ओके, मेंडल ने पी पे काम करा, मटर पे काम करा था, ओके। मेंडल ही वर्कड ऑन पाइसम सटाइवम, पाइसम सटाइवम, दैट इज गार्डन पी, ठीक ना, गार्डन पी खाने वाला पी जो होता है मटर, for 7 years, 7 साल तक काम करा उन्होंने, फ्रॉम when to when, फ्रॉम 1856 to 1863,
ठीक है ना। 1856 से लेके 63 तक उन्होंने काम करा और बहुत सारे प्रिंसिपल्स दिए उन्होंने। उन्हीं प्रिंसिपल्स को बाद में लॉस का नाम दे दिया गया बाय डिफरेंट साइंटिस्ट। ओके, हाँ। He considered 7 distinguishable character for his experiment। ठीक ना। 7 distinguishable character कहने का मतलब ऑल टुगेदर हो जाएगा 14 trait। Now let me tell you what is difference between character and trait। character और trait में different क्या होता है ये बताते हैं। क्वेश्चन आता है character and trait। ठीक है। character means the feature of an individual। feature of an individual। ठीक ना। जैसे कि हाइट, एग्जाम्पल सेम हाइट। ठीक है, कुछ भी हो सकता है हाइट, सेम हाइट, फ्लावर कलर। ठीक है, ये फीचर हो गया कोई भी इंडिविजुअल का, कोई भी पौधे का। नाउ ट्रेट कहने का मतलब होता है डिस्टिंग्विशेबल फीचर। डिस्टिंग्विश कर पाना, एक दूसरे से अलग कर पाना। डिस्टिंग्विशेबल फीचर ऑफ एन इंडिविजुअल। एग्जाम्पल जैसे कि स्टेम हाइट, तो टॉल ड्वार्फ, टॉल एंड ड्वार्फ हो गया ना डिस्टिंग्विशेबल फीचर। यदि स्टेम हाइट क्या है, टॉल है, आपका दिमाग में डायग्राम बन जाएगा कि हाँ टॉल है, शॉर्ट है, छोटा है। ठीक ना। फ्लावर कलर वायलेट है, रेड है, येलो है, तो आपके दिमाग में एक क्लियर कट आइडिया हो जाएगा ना कि हाँ भैया कलर है तो किस रंग का है। द फ्लावर इज कलरफुल, ओके आई गॉट कलरफुल, लेकिन किस कलर का। द फ्लावर इज कलरफुल, दैट इज अ कैरेक्टर। कलरफुल एक कैरेक्टर हो गया, लेकिन किस रंग का है, दैट इज द ट्रेट ऑफ दैट फ्लावर। ठीक, ये होता है ट्रेट ऑफ कैरेक्टर। Now, so Mendel from the beginning he used something around 34 characters। 34 कैरेक्टर उन्होंने इस्तेमाल करा था स्टार्टिंग में, बाद में उन्होंने 22 करा था, लेकिन अल्टीमेटली he worked out with 7 कैरेक्टर्स। अभी हम बताते हैं वो कौन सा 7 कैरेक्टर्स इस्तेमाल करा था अपने रिसर्च पर्पस के लिए, है ना। सो कैरेक्टर्स एंड ट्रेट used by Mendel in pea plant for his study। ठीक है, 7 मतलब ऑल टुगेदर हाउ मेनी ट्रेट he has selected? 14। so he selected 7 character, that is 14 contrasting traits, and he selected 14 pure line plant। 14 प्लांट सेलेक्ट करा था उन्होंने। कैसे बता रहे हैं अभी यहाँ पे। कैरेक्टर, ट्रेट, है ना। तो एक में हम डोमिनेंट रखते हैं और एक में रखते हैं रिसेसिव। मतलब उन्होंने रिसेसिव किसको कंसिडर करा होगा और डोमिनेंट किसको कंसिडर करा होगा वो देखते हैं। नाउ लेट मी स्टार्ट विथ स्टेम हाइट। स्टेम का हाइट, ठीक है। तो कैसा कंसिडर करा था स्टेम का हाइट उन्होंने,
टॉल, ठीक है, टॉल। रिसेसिव में हो जाएगा ड्वार्फ, ओके। नेक्स्ट दूसरा, तो टॉल के लिए पौधा अलग होगा, ड्वार्फ के लिए पौधा अलग होगा। स्टेम हाइट हो गया। ये क्या होता है? फ्लावर पोजीशन, लेकिन से फ्लावर पोजीशन, फ्लावर पोजीशन समझ पा रहे हो? फ्लावर पोजीशन मतलब क्या होता है? फ्लावर का पोजीशन टिप पे है या फिर एक्सियल पे है, ठीक ना? सो टर्मिनल एंड एक्सियल, टर्मिनल एक्सियल, एक्सियल को डोमिनेंट कंसीडर करा था उन्होंने, टर्मिनल को रिसेसिव। नाउ 3 फ्लावर कलर, फ्लावर का कलर वायलेट एंड व्हाइट, 4th pod शेप, छीमी का शेप, मटर छीमी बोलते हैं ना, उसका शेप। फल इन फ्लैटन, इन फ्लैटन मतलब अच्छा, ठीक ना, देखने में बहुत सुंदर, ठीक ना। और रिसेसिव में सिकुड़ा हुआ, श्रिंक, ओके। ये हो गया 4th कैरेक्टर्स। बाकी बता रहे हैं, पोड शेप, पोड कलर ग्रीन एंड येलो, ओके। ये हो गया 6, यस। सीड, सीड कलर, सीड का कलर, मटर का बीज का कलर, दैट इज ग्रीन एंड येलो, ग्रीन एंड yes, seed color, seed color dominant is yellow and recessive is green. Don't get confusion, ठीक ना, बार बार क्वेश्चन यही से आता है। And the last one is seed shape, ठीक है। seed shape round dominant के लिए रखा गया था और wrinkle रिसेसिव के लिए, है ना। तो याद रखेंगे, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से ये, ठीक है। और ध्यान रखेंगे ये सीड शेप वाला जो जीन था वो प्रेजेंट था क्रोमोसोम नंबर 7 पे, ओके। स्टेम हाइट, फ्लावर पोजीशन, ओके, सीड शेप, सीड कलर, यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन आता है।